Shut up and sit down. Impact of the reform movements on Indian society. भारतीय समाज पर सुधार आंदोलनों का क्या प्रभाव पड़ा, आइए इसके बारे में पढ़ते हैं. The reform movements were able to create socio-religious consciousness among the Indians during the 19th century. 19वीं सदी के दौरान भारतीय सामाजिक धार्मिक आंदोलन भारतीयों के बीच चेतना पैदा करने में सक्षम हुए. All these movements laid stress on rational understanding of social and religious ideas and encouraged a scientific and humanitarian outlook. इन सभी आंदोलनों ने सामाजिक और धार्मिक विचारों को समझने में तर्क संगत सहायता की तथा वैज्ञानिक और मानवीय दृष्टिकोण को प्रोत्साहित किया. The reformers felt that modern ideas and culture could be best imbibed by integrating them into Indian cultural streams. सुधारकों ने यह महसूस किया कि आधुनिक विचारों और संस्कृति के भारतीय संस्कृति धाराओं में मिलाने से आत्मसात किया जा सकता है. The introduction of modern education guided the Indians towards a scientific and rational approach to life. अब देखिए, बोल रहा है आधुनिक शिक्षा का परिचय जीवन के लिए एक वैज्ञानिक और तर्क संगत दृष्टिकोण की दिशा में भारतीयों को निर्देशित कर सकता है. All the movements worked to improve women's status and criticize the caste system, especially the practice of untouchability. सब आंदोलनों ने महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए काम किया और जाति व्यवस्था, विशेष रूप से अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी की आलोचना की है. These movements looked for social unity and strived towards liberty, equality and fraternity. अब देखिए, ये सभी जो आंदोलन थे सामाजिक स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा की दिशा में कार्य करते हैं. Importance was given to education, especially women's education. शिक्षा में विशेष रूप से महिलाओं की शिक्षा को महत्व दिया गया था. Some legal measures were introduced to raise the status of women. महिलाओं की स्थिति को बढ़ाने के लिए कुछ कानूनी उपाय भी शुरू किए गए. For example, सती प्रथा and infanticide were declared illegal. उदाहरण के लिए सती प्रथा तथा शिशु हत्या अवैध घोषित कर दिया गया. Widow remarriage was made possible by a law passed in 1856 and conditions of widows improved. 1856 में पारित कानून से पुनर्विवाह संभव बन गया और विधवाओं की स्थिति में सुधार हुआ. A law passed in 1872 sanctioned intercaste and intercommunal marriages. 1872 में पारित कानून अंतरजातीय और अंतर सांप्रदायिक विवाह को मान्यता दी. Marriageable age of girls was raised to 10 by a law passed in 1860. 1860 में पारित कानून द्वारा लड़कियों की शादी की उम्र 10 वर्ष तक बढ़ा दी गई. अभी यह 21 वर्ष है. Further, Sharda Act was passed in 1929 preventing child marriage. अब देखिए, बाल विवाह को रोकने के लिए इसके बाद शारदा अधिनियम 1929 को पारित किया गया. According to it, a girl below 14 and a boy below 18 cannot be married. उसके अनुसार 14 वर्ष से कम की लड़की और 18 वर्ष से कम के लड़के की शादी नहीं कर सकते थे. The impact of the efforts of these reformers was most evident in national movement. देखिए, बोल रहा है इन सुधारकों के प्रयासों के सबसे स्पष्ट प्रभाव राष्ट्रीय आंदोलन पर देखा गया.
A large number of women came out to take part in the freedom struggle. महिलाओं की एक बड़ी संख्या आजादी के संघर्ष में भाग लेने के लिए घरों से बाहर आई. The rule of women, the role of women like Captain Lakshmi Sehgal of Indian National Army, Sarojini Naidu, Annie Besant, Aruna Asaf Ali, and many others was extremely important in the freedom struggle. Women now came out of the parda and took up jobs. Indian National Army की कैप्टन लक्ष्मी सहगल की तरह महिलाओं की भूमिका सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, अरुणा असफ अली तथा अन्य स्वतंत्रता संग्राम में अति महत्वपूर्ण है. महिलाएं अब पर्दे से बाहर आईं और नौकरियां करने लगीं. The persistent effort of the reformers had immense impact on the society. सुधारकों के लगातार प्रयासों से समाज पर भारी प्रभाव पड़ा. The religious reform movements instilled in the minds of Indians greater self-respect, self-confidence and pride in their country. धार्मिक सुधार आंदोलनों ने भारतीयों के मन में अधिक आत्मसम्मान और आत्मविश्वास और देश के प्रति गर्व का भाव जगाया. These reform movements helped many Indians to come to terms with the modern world. इन सुधार आंदोलनों से अनेक भारतीयों को आधुनिक दुनिया के साथ जोड़ा. People became more conscious of their identity as Indian. लोग भारतीय के रूप में पहचान बनाने में अधिक जागरूक हो गए. It was ultimately responsible for their united struggle against the British in the freedom movement of India. अंततः लोगों का एकजुट होना भारत का स्वतंत्रता आंदोलन ही ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष का जिम्मेदार है. In the 20th century and especially after 1919, the Indian national movement became the main propagator of social reform. 20वीं शताब्दी में और 1919 के बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन सामाजिक सुधार का मुख्य प्रचारक बन गया. Indian languages were used to reach the masses. अब देखिए, स्वतंत्रता ने विचारों को भारतीय भाषाओं के द्वारा जनता तक पहुंचाने के लिए प्रयोग किया गया. They also used novels, dramas, short stories, poetry, the press, and in the 1930s used the cinema to spread their views. उन्होंने 1930 में उपन्यास, नाटक, लघु कथाएं, कविता, प्रेस तथा सिनेमा का अपने विचारों को प्रचारित करने में प्रयोग किया. The movements promoted the feeling of self-confidence, self-respect, awareness, and patriotism, and thereby developed a feeling of national consciousness. अब देखिए, आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, जागरूकता, देशभक्ति तथा एक विकसित राष्ट्र चेतना की भावना को इन आंदोलनों द्वारा बढ़ावा दिया गया. Do you remember reading some of the novels and seeing some films related to independence movement? क्या आपको याद है कि उपन्यास को पढ़ने और कुछ स्वतंत्रता आंदोलनों से संबंधित फिल्मों को देखने भी आंदोलन का हिस्सा माना जाता था? For a beginning, start making a list of some such authors and their book. Make a list of some films also. आरंभ के लिए कुछ इस तरह के लेखकों और उनकी पुस्तकों की सूची बनाएं. कुछ फिल्मों की भी एक सूची बनाइए. Also make a list of some songs. Maybe this clue will help you. इंसाफ की डगर पर बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के, और वंदे मातरम sung by लता मंगेशकर in the same film. अब देखिए, इसके अलावा कुछ गीतों की भी एक सूची बनाइए.
जैसे इंसाफ के डगर पर बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के, या वंदे मातरम। These reform movements had certain limitations. सुधार आंदोलनों की कुछ सीमाएं थीं. It affected a very small percentage of the population, mostly the educated class, and could not reach the vast masses of the peasantry and urban poor who continued to live in the same conditions. यह एक बहुत छोटे प्रतिशत जनसंख्या को प्रभावित कर पाए थे, जो ज़्यादातर शिक्षित वर्ग ही थे। यह आम जनता तक नहीं पहुंच सके, यह किसानों एवं गरीब जनता तक भी नहीं पहुंच सके। अब यहाँ कुछ वर्ड्स है, देखिए, ह्यूमैनिटेरियन, मानवीय, having the concern for or helping to improve the welfare and happiness of all people, मानवीय चिंता का विषय होने या कल्याण को बेहतर बनाने में मदद, सभी लोगों की खुशी के लिए तथा उनके कल्याण को बेहतर बनाने में मदद के लिए। लिबर्टी, स्वतंत्रता, फ्रीडम टू एक्ट और थिंक एज यू चूज, अपने इच्छा से आप आज़ादी से अपनी ज़िंदगी को जी सकें। फ्रैटर्निटी, बिरादरी, अ ग्रुप ऑफ पीपल विथ समथिंग इन कॉमन, भाईचारा, ठीक है।